Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 12 students belong to chapter 13 organisms and population. Actually, I am going to talk about the similar types of content, similar types of concept regarding the how do organisms face their abiotic environmental factors and what are the different methods by which organisms able to fight against the different kinds of their abnormal weather conditions. Keep in mind, the heading is various response of organisms to abiotic factors. These are the major headings. But what about the questions that may ask regarding this concept? The questions may ask as the how do organisms cope the stressful ambient environment. Cope means to fight. Listen, to fight against the different kinds of abiotic environmental factors. It means how do organisms manage the stressful environmental factors. Actually, you don't know whatever the stressful environmental factors comes in your life. So your body actually prepared themselves. Your body actually prepared for that kinds of environmental factors, may be favorable or unfavorable, but you don't have any idea. So organisms actually, living organisms regarding human being and other birds, reptiles, fishes, etc. are actually having the different category, and on the category in this topic I will describe you whatever the important category by which they are placed together in a group or the different groups, so that they are able to face the abiotic environmental factors. Means when the harsh habitat comes in their life, when the abnormal weather condition comes in the life cycle of the any human being or any kinds of living organisms, how do they fight against that kinds of particular habitats. So the questions, the important questions here I have put the important question may be asked regarding this concept is how do organisms cope the stressful ambient environment. The second heading regarding the concept is method to manage the stressful environment by living organisms. What are the different methods by organisms able to face the stressful means the non-favorable or the condition which is unfavorable for the particular living organisms. So let us talk about what are the different methods by which living organisms actually categorize in order to face the abiotic environmental factors. What are the different methods? Actually, there are 4 basic methods. So one by one I will describe whatever the 4 basic method, but keep in mind here you need to write about the cope. Meaning of cope means to manage. Cope means to manage. Many students are confused regarding the cope. Stressful means the unfavorable condition. Stressful means regarding unfavorable condition. Unfavorable condition. You should write. As you all know, every organism has a constant homeostasis. If there is an external or internal change happen, then the internal balance actually get abnormal. It means you can say that the homeostasis actually get abnormal. So what is the concept of homeostasis? Homeostasis means the internal metabolism, the balanced metabolism. That is internal body balance. Which kinds of body balance? The temperature and osmoregulation. Keep in mind the temperature and osmotic gradients. These two are actually get affected when the abnormal temperature or abnormal regulations or abnormal condition become harsh. So here I am talking about which kinds of homeostasis, which kinds of internal balance are actually required to do by the living organisms even when the condition is abnormal. The balance mainly for temperature and for the osmotic gradients. What is osmotic gradients? Your internal biochemical
concentration. Your internal acid, base and many things get affected by the external factors, that is actually related to the osmotic gradients. Osmotic gradients required each time maintained by you and your body according to the change in environmental conditions. So let us talk about if the internal body temperature get maintained, there will be the constant temperature or the constant osmotic gradients. So whatever the important category by which living organisms are actually face the abiotic condition. What are the different types of methods? Here the methods are actually the main heading in which we can categorize the 4 different group of organisms and the 4 different kinds of methods. First, methods. On the basis of methods, organisms are actually 4 types. So which kinds of methods by which organisms able to face the abiotic habitats? Listen, point 1 is the regulate. Regulate is the method. Regulation or regulate is the method by which living organisms able to fight or able to tolerate the harsh habitat, and the organisms that have the ability of regulate method are known as regulator. Regulator organisms. These are the category of organisms, and these are the method to manage the stressful environmental condition. Second method is conformal. Conform is the method, and conformers are the organisms that possess the method by which they able to manage the stressful abiotic habitats. Third is migrate. Listen, migrate, and the organisms that have ability to follow these kinds of methods are known as migrator. And fourth one is suspend. Methods by which organisms able to manage the stressful abiotic habitat, that is known as suspender. So the group of organisms are maybe the regulator, conformer, migrator, suspender, and the methods is regulate, conform, migrate and suspend. These are the different methods by which organisms able to फेस द एबायोटिक हैबिटेट्स, यानी इस मेथड्स के थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है अपने एबायोटिक हैबिटेट्स को फेस कर पाते हैं. ठीक है, अब इन सबको एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए. ठीक है, रेगुलेटर्स क्या होते हैं उसको मैं समझा दे रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाए. ठीक है, रेगुलेटर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, लिसन, रेगुलेटर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट नेवर चेंज द बॉडी homeostasis or internal homeostasis, not neither the temperature or not osmotic gradients get changed even when the atmosphere get changed. Body temperature constant रहेगा, environmental temperature घटे बढ़े कोई problem नहीं. For example, your body. Conformers are those kinds of organisms or those group of organisms that change their internal homeostasis according to the changing in environmental condition. जैसे जैसे environment का condition change होगा अपने body का homeostasis, चाहे osmotic gradients हो चाहे वो temperature, ठीक है, वो बदलता रहता है. Migrators are those organisms that never able to tolerate the stressful abiotic habitats, so they actually skipped out from the harsh habitats. ये होते हैं कि वो अपने बॉडी को ना तो कांस्टेंट कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं. वो अपने हर्श हैबिटेट्स अगर है तो वो हैबिटेट्स ही छोड़ करके वहां से निकल लेंगे. ठीक है, सस्पेंडर्स क्या होते हैं, वो छोड़ के भागते भी नहीं है, बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर भी नहीं बदलता है. ठीक है, नहीं बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहता है, नहीं चेंज होता है. वो अपने मेटाबॉलिज्म को ही पूरी तरह से सस्पेंड कर देते हैं, डाइजेशन स्लो कर देंगे, रेस्पिरेशन स्लो कर देंगे, ग्रोथ उनका कुछ समय तक रुक जाएगा. कब तक? जब तक स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन रहेगा तब तक. ठीक है, दे आर सस्पेंडर. अब मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ ताकि कंडीशन आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए. ठीक है, चलो आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बना दिया हूँ. ठीक है, ये 2 कंडीशन में यहाँ पे मैं इसका टेम्परेचर, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स को बना रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कन्फॉर्मर्स, ये हो गया रेगुलेटर, ये हो गया माइग्रेटर और ये हो गया सस्पेंडर. ठीक है, 4 ग्रुप. ठीक है,
इस पूरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मैं रख दे रहा हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पूरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या रख दे रहा हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अब सबका मैं अलग अलग टेम्परेचर नहीं रख रहा हूं, बल्कि सबका टेम्परेचर रख दे रहा हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबका टेम्परेचर का मतलब क्या है, सबके बॉडी के टेम्परेचर को मैं 20 डिग्री कर दिया। कन्फार्मर्स का 20 कर दिया, रेगुलेटर का 20 कर दिया, माइग्रेटर का 20 कर दिया, सस्पेंडर का 20 कर दिया। और ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। ये तो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं 20 ही रखा हूँ, ठीक है। अब अचानक से अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 से अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, लिसन, ये एक कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है, ध्यान से सुनेंगे। ये अगर आप अच्छे से समझ गए चारों का कॉन्सेप्ट, तो यही आपका ये फाइनल हो जाएगा चारों। अदरवाइज आपको बारी बारी से एक एक भी पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल भी पढ़ने, और उसमें भी तमाम मेथड्स उसको भी पढ़ना है। यही आप समझ लेंगे चारों का कॉन्सेप्ट, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये क्या है, इन्वायरमेंट का क्या है, एक कंडीशन है। और इसमें 4 ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स। चारों का मैंने नाम लिख दिया है। कन्फार्मर्स, बॉडी टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रेगुलेटर बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, माइग्रेटर जितने हैं वो बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सस्पेंडर जितने हैं ये एक समझ लीजिए एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अभी पर कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं एग्जांपल समझाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये चारों ग्रुप मैंने समझा दिया, और ये बता दिया कि उस एनवायरमेंट में जहां ये चारों रह रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अचानक, भाई सपोज दैट जनवरी के महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मई जून के महीने में आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो अचानक से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। यानी इसमें अब देखिए कि उस 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन कौन इंटर कर पाता है, यानी कौन कौन वहीं रह जाता है, और कौन कौन किस तरह के बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कन्फार्मर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कन्फार्मर्स का जो बॉडी टेम्परेचर है, कन्फार्मर्स के जो बॉडी टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेंगे, ठीक है। इट रिमेन्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और खास बात ये कि अपने एनवायरमेंट में बने हुए 20 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। कन्फार्मर्स का ये 20 नहीं, कन्फार्मर्स का ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। कन्फार्मर्स का बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या हो गया, ठीक है। कन्फार्मर्स अपने बॉडी टेम्परेचर को कितना कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, अपने एनवायरमेंट में ही बना हुआ है, लेकिन अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर दिया। एनवायरमेंट का 100 जाएगा, इसके बॉडी का भी 100 चला जाएगा, ठीक है। तो ये है कन्फार्मर्स की प्रॉपर्टी। रेगुलेटर्स की मैं बात करूं, रेगुलेटर्स क्या किया, रेगुलेटर्स की बॉडी में चेंजेस नहीं हुआ, और वो अपने बॉडी को 20 डिग्री की कंटिन्यू 20 डिग्री ही रखा हुआ है, ठीक है। रेगुलेटर ने अपने बॉडी में कोई चेंजेस नहीं किया। मैंने ऊपर बताया था कि रेगुलेटर मोस्टली वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, 20 ही रखा हुआ है। मतलब पहले कितना था 20, और एनवायरमेंट का कितना था 20, अब एनवायरमेंट का हो गया 40, अभी भी इसके बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाइक यू मी, ठीक है। तो ये कन्फार्मर्स, ये रेगुलेटर्स की खास बात होती है। ये रेगुलेट कर लेते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, उतना ही रखते हैं, उतना ही मेंटेन रखते हैं, और ऊपर की जो कन्फर्म रखते हैं, मतलब जितना एनवायरमेंट का वो उतना अपने बॉडी टेम्परेचर का होगा, ठीक है। अब आते हैं माइग्रेटर। माइग्रेटर क्या होगा, माइग्रेटर जो है एनवायरमेंट का टेम्परेचर 20 से जैसे 40 होगा, ये क्या होंगे, ये निकल लेंगे गोला होकर, ये उस एनवायरमेंट में रहेंगे ही नहीं, ये क्या होंगे, ये निकल लेंगे। जैसे आप मास मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स और फिशेस को देखते होंगे, आप देखते होंगे कि रामगढ़ ताल में बहुत सारे बर्ड्स सोवियत रूस से आते हैं, ठीक है। तो बखीरा ताल में भी बहुत सारे ऐसे विदेशी पक्षी आते हैं। तो वो बर्ड्स क्यों आते हैं भाई, अपने एनवायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट घटा बढ़ा वहां से निकल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सस्पेंडर क्या होगा, सस्पेंडर अपनी बॉडी टेम्परेचर को उतना ही रखेंगे, लेकिन अपनी जो जरूरतें हैं उसको कम कर देंगे, शॉर्ट आउट कर देंगे, वो भागेंगे नहीं, वो एनवायरमेंटल कंडीशन में भी रहेंगे। लेकिन मैं स्टार लगा दिया, कंडीशन क्या है कि अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को 40 के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, वो भागेंगे नहीं लेकिन 40 के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को 40 के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, अपने बॉडी के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स को 40 के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। पूरा का पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, चाहे ग्रोथ हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो, चाहे डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन हो, वो सब कुछ सस्पेंड कर देते हैं, और वो इंतजार करते हैं कि कभी न कभी 20 आएगा ही, भाई साल में एक बार आता है तो आएगा, जब आएगा तो फिर अपना कंटिन्यू करते हैं, उसको कहते हैं सस्पेंडर, ठीक है। मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं,
फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ठीक है, जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं, सॉरी जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हमको यही जानना है कि रेगुलेटर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वो अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। रेगुलेटर कन्फार्मर्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से रखते हैं। माइग्रेटर अपने बॉडी टेम्परेचर को और एनवायरमेंट टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रखता है। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर घटता पड़ता है तो निकल लेंगे झोला उठा के। और जो सस्पेंडर होते हैं वो अपने एनवायरमेंट में बने रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हार्श हैबिटेट है तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड रखते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे रिप्रोडक्शन, अपनी जरूरतों को शॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना में क्या है, बहुत सारे लोग जो है पैसे के अभाव में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये हुआ कि वो अपने जरूरतों को शॉर्ट आउट कर दिए। फिर कोरोना खत्म हो गया, फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, बिजनेस चलने लगा, लोग अपना जो है काम शुरू कर दिए। तो ये सस्पेंडर का काम है, ठीक है। अब कन्फार्मर्स और रेगुलेटर का एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। उस ग्राफ को मैं इस साइड बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो ग्राफ ये दे देता है, एक इस तरह से ग्राफ दे देता है, ठीक है। यहां पे दे देता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और यहां पे दे देता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? इंटरनल फैक्टर्स का मतलब हो गया कि व्हाट हैपन चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स, दैट इज दे आर मेनली फ्रॉम homeostasis and these are mainly from environmental factors, means whatever the change in the climatic condition, whatever the change in temperature or whatever the change in wind or the different kinds of the weather. So here अब इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन से, सिर्फ यहाँ पे हमको ये ग्राफ किसमें बनाना है, कन्फार्मर्स और रेगुलेटर के बीच में, ठीक है। तो अब आते हैं, पहले हम रेगुलेटर की बात मैं कर दूं तो रेगुलेटर का बॉडी टेम्परेचर, मान लो कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर हो गया 50 बढ़ गया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 50 है, तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 80 हो गया तो भी इसके बॉडी का टेम्परेचर 50 होगा, यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल पैरेलल चलेगा। ये कौन है? ये है रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर के बॉडी टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रेगुलेटर है, ठीक है। रेगुलेटर का कंडीशन जो है ये बढ़ता रहेगा, तो ये इनकी बॉडी ऐसे नहीं बढ़ती रहेगी, ये पैरेलल चलेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, लाइक यू मी, ठीक है। कीप इन माइंड ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए होता है रेगुलेटर, ठीक है। अब आते हैं कन्फार्मर्स क्या होते हैं। कन्फार्मर्स का बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से बढ़ता रहता है, एनवायरमेंट का बढ़ा इनकी बॉडी का बढ़ता रहता है। ये कौन है? कन्फार्मर्स, ठीक है। कन्फॉर्मर्स को आप कीप इन माइंड, इसको दिमाग में रखेंगे। बॉडी का टेम्परेचर जो है एनवायरमेंट के टेम्परेचर से ये मैच करना चाहिए, यानी बॉडी का एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, एनवायरमेंट का टेम्परेचर यहाँ बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे एनवायरमेंट का बढ़ता है, यहाँ 0 हो गया एनवायरमेंट का टेम्परेचर, ये भी 0 हो गया, ठीक है। और ये शुरू से ही कांस्टेंट है। कौन है? रेगुलेटर। एक और कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल कन्फार्मर करके, ठीक है। पार्शियल कन्फार्मर्स क्या होते हैं? कुछ समय तक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर वो मैनेज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडी, अकॉर्डिंग टू इंटरनल होम्योस्टेसिस। तो पार्शियल का कैसे बनेगा? यहाँ पे बनेगा पार्शियल का जो ग्राफ बनेगा वो पहले पैरेलल चलेगा, फिर जाकर के पहले तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चलेगा, फिर आकर के वो पैरेलल हो जाएगा। ये कौन है? पार्शियल कन्फार्मर्स। ये ग्राफ को आप अच्छे से पिकअप कर लीजिए, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ को आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन भी कर लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लाइव क्लासेस में मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ये ग्राफ को आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। द ग्राफ ओनली शो फॉर द कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन बिटवीन द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर, दैट इज इंटरनल होम्योस्टेसिस between only the conformers and regulator. These graphs never explain the whatever the changes in migrator and डाईपास, दैट इज माइग्रेटर एंड सस्पेंडर, नॉट डाईपास, ठीक है। माइग्रेटर एंड सस्पेंडर, डाईपास एक एग्जांपल है सस्पेंडर का, आगे बताएंगे। तो ये कंडीशन क्या है? सिर्फ रेगुलेटर, क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ना,
according to temperature, according to regulation, thermoregulation or osmoregulation, there will be only for the regulator and conformers. These two are very important to you. So you need to explain whatever the importance of graph, whatever the concept of these graph. Here the graph represent the external factors. External factors may be the temperature, maybe the osmotic gradients or weather. Internal condition like homeostasis. So in case of conformers, as the body temperature, as the environmental condition get increased, as the environmental temperature increase, the body temperature as well as the internal homeostasis also get increased up to the level of environmental condition. Now back to the regulator condition. Here you can see the parallel line according to the environmental condition. Here the parallel line represent the body temperature and the body osmotic pressure never change according to change in the environmental condition. ये बॉडी टेम्परेचर एक पैरेलल, इसका मतलब पहले कितना था 50 था, उसके बाद कितना था 50 हुआ, अब भी कितना 50 है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर ये बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ये क्या है, ये बढ़ रहा है. सपोज दैट यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, यहाँ पे 40 है, और ये मान लो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो पहले भी 20, अब भी 20, जब भी जाओ तब भी 20, लेकिन ये बढ़ गया है 40. जब 40 हो गया तो क्या हो गया, तब भी जो है रेगुलेटर का टेम्परेचर कितना है 40 ही है. तो ये रेगुलेटर है. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पार्शियल कन्फॉर्मर्स. पार्शियल कन्फॉर्मर्स फर्स्ट इंक्रीज द इंटरनल मेटाबॉलिज्म एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड लेटर इट रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन. इट मींस इट विल half or partial conformers. It means it is partial regulator or partial conformers, because first it increase the body temperature or it continue along with the external factors, but later it will continue according to their internal homeostasis. पहले ये environment के हिसाब से बढ़ा रहा है, फिर जो है अपने body के अकॉर्डिंग पैरेलल कर दे रहा है रेगुलेटर की तरह से. ठीक है. In next video lecture, I will describe one by one about the regulator, conformers, migrator and suspender detail along with the example. Thank you.